Hello, friends. Today in the Sales Mastery program, I was having a conversation with a participant, and two important things I observed, and that became a learning for me. So I thought of sharing with all of you. The topic that we were covering is that uh, who is our target audience for our business, how to identify that, and what might be the possible ways of reaching out to them. And during this conversation, I realized that there is this person who is stuck. दिमाग जो है उस मोमेंट में कहीं ना कहीं अटक गया था आइडियाज जनरेट करने. एंड when the space was provided during that conversation and we went deep into it, the statement that came out was, I am not a creative person. And I find this extremely fascinating. The fascination is that how do we program ourselves? पुरानी एक बहुत स्टोरी है रामू द बेबी एलिफेंट की, और उस स्टोरी में एक महावत है. एक एक हाथी है रामू नाम का जो बहुत ज़्यादा शैतान था, और वो सब चीज़ें इधर उधर शैतानी करके उजाड़ता रहता था. तो जो उसका महावत था, जो उसका केयर टेकर था, उसने क्या किया, उसके पैरों में जंजीर बांध दी. और वो जंजीर इतनी स्ट्रांग थी कि कुछ दिनों लगातार बंधे रहने के बावजूद बाद उसने कोशिश तो करी हाथी ने, लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल के आ पाया और वो उसके अंदर बंधा रह गया. और एक वक्त ऐसा भी आया कि रामू ने कोशिश करना छोड़ दिया. हमारी कहानी भी कुछ इस तरीके की है. बचपन में कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई क्रिएटिव आइडिया, कोई क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढने का प्रयास किया और उसका अप्रिसिएशन पेरेंट्स ने या परिवार ने या स्कूल ने या एनवायरनमेंट ने से हमें नहीं मिला. तो क्योंकि उसका अप्रिसिएशन नहीं मिला तो उसके कई सारी चॉइसेस हो सकती हैं, बट एक कॉमन चॉइस ये होती है कि फिर हम उसको धीरे धीरे करना, उस मसल को, उस हिस्से को दिमाग के यूज़ करना बंद कर देते हैं. एंड देन it emerges or it shows up in the form of a language that we use daily. And slowly and gradually, like Ramu the baby elephant convinced himself that despite growing bigger, he cannot break that chain. The mind also convincingly convinces कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ. और एक बड़ी छोटी सी बातचीत थी जिसको करेक्ट करना पहले ज़रूरी है before we start learning how to identify the target audience. There's another beautiful line that one of the participants named Ayush shared. He said that the topic today is not about the topic is about finding your target audience. It is not about targeting your audience. And I just loved it because the space from which he was operating will help him grow. So I have a few suggestions for all of us. Before we acquire a new skill or we are on the path of learning something, we need to identify what are the thoughts that are making us unproductive. Watch out the tone and character of those thoughts first. If you are able to identify them, identify what might be the better thought which can replace that thought. And do three things. Watch out for your emotional diet in the morning. When I say emotional diet, what do I mean? हम जब सुबह सोकर उठते हैं 1 घंटा और रात में सोने से पहले उसकी अपनी इमोशनल डाइट का ध्यान रखें. और उसके 3 कंपोनेंट्स हैं. हम सुबह उठने के बाद क्या पढ़ते हैं उस बात का ध्यान रखें, रीडिंग. नंबर 2, वॉचिंग, हम क्या देखते हैं उसका ध्यान रखें. कुछ ऐसी चीज़ें देखें जो हमें अपने गोल या अपने मिशन की तरफ ले जाने में मदद करें, बजाय न्यूज़ चैनल देखने के, अनप्रोडक्टिव चीज़ें देखने के, या ऐसी चीज़ें देखने के जिसका टोन और कैरेक्टर ऑफ दैट थॉट माइट बी अनप्रोडक्टिव. और तीसरी चीज़ है, पहला हमने क्या बोला, रीडिंग, दूसरा वॉचिंग और तीसरा लिसनिंग. अगर हम अपने दिन के रूटीन में, अपनी हैबिट में
इस बात का ध्यान रखना शुरू कर देंगे, many solutions that you might find are right now not happening in your life, might start happening, might start showing up in your life. So I'm repeating, watch out for your emotional diet, because ये जो thoughts हैं ना, जो ये जो विचार हैं कि आई एम नॉट अ क्रिएटिव पर्सन, जिसका रूट जो है ना वो बहुत डीपली एंट्रेंच भी हो सकता है, और उसको ठीक करने के लिए, रीप्रोग्राम करने के लिए सॉफ्टवेयर को हमें इनपुट का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको मैं इमोशनल डाइट बोल रहा हूँ, प्रोसेसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमें रिफ्लेक्शन की मदद से मिलेगा, ताकि हम ध्यान रख सकें कि हमारे विचारों की टोन और कैरेक्टर क्या है, और आउटपुट जो है वो इनपुट और प्रोसेसिंग के बेस पर निर्भर करेगा। एक सिंपल एग्जाम्पल से इस बात को मैं अंत करना चाहूँगा। पहला, अगर हमें शार्पेंड पेंसिल की अपेक्षा है अपनी लाइफ में, तो इनपुट क्या है? शार्पनर और पेंसिल। प्रोसेसिंग क्या है? शार्पन करना, तब जाकर शार्पन पेंसिल हमको मिलती है। तो अगर हम चाहते हैं कि नए क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट करें, तो उसके इनपुट पर ध्यान रखो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, रिफ्लेक्ट करो, प्रैक्टिस करो, और धीरे धीरे कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने का प्रयास करो। आउटपुट ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये विचार है वो आप लोगों को आपके विचारों को बेहतर करने में मदद करेगा और बहुत सारी चीज़ें अनलॉक होंगी। विशिंग यू, all of you who are listening to this, my entrepreneur friends, my friends of sales growth community, and all the people who are interested in learning, wish you all the best, wish you loads and loads of